So my mom is completing 40 years of her service at State Bank of India, and I thought this glorious journey called for a little flashback. In 1961, mom was born to late Mr. Motiram Bele and Chandraprabha Bele. She did her schooling and graduation from Nagpur and landed her bank job at the age of 20 as a clerk cum typist. Although she had humble beginnings, she always dreamt of the skies. मला कौतुक वाटते कोणाने कौतुक करू असं वाटते शब्दात. या आज माझी पोरगी इतकी मोठी झाली आणि एवढ्या त्रासात पुन्हा सुखात तर कोणी होते पण त्रास बघून झालं पाहिजे. ती लहान होती तेव्हा शिकताना तिने वाटेल तेवढं कष्ट केले कारण तिला आपल्या वडिलाची परिस्थितीची जाणीव होती आणि पुन्हा तिच्या धीटपणा आहे. घाबरत नाही ती कोणाला. आज मला भयंकर आनंद भयंकर खुशी होती तिची. माझी मुलगी मुलासारखी आहे म्हणत नुसतं रूपच मुलीच आहे. In the first few years of her service in Nagpur, she worked at the zonal office, where she also met her life partner. They fell in love and then they got married, and the rest, like they say, is history. So she has more than one reason to be thankful to SBI. She was a 100% committed, career-oriented lady. She never used to be on leave, even during COVID and lockdown. When security personnel and police wala people made her stay home, only then that time she stayed home. Otherwise, she was very keen to go to her office. I'm very proud to have such a hardworking mother. As long as I can remember, I've always seen her very focused at what she's doing. She always knows where her priorities lie, and I think that's very commendable. I believe I was able to have such a good life, the life that I did. It's all because of her. I believe I am where I am today. It's all because of her. Because she was there every step of the way, even if she wanted to or did not want to. Yes, so I do aspire to be as hardworking as her. Mom was ambitious about making her mark. She wasn't just meticulous about her work, but she was equally enthusiastic about participating in every activity organized throughout the year. So be it anchoring the bank events, to speeches, to interstate table tennis matches, to performing at the annual gathering, she did it all. While in zonal office and main branch, she patiently waited for us kids to grow up so she could start working at growing in her career. And soon enough, she was climbing the ladder of success, one promotion at a time. Owing to her promotions, mom relocated several times, sometimes with family and other times without. One of her postings included a 2-year-long rural assignment at a very small village in Nagpur called Bhivapur. It wasn't an easy one. Staying alone at Bhivapur on some days and driving the 2 hours route back to Nagpur on other days, she did whatever she had to successfully complete her term there. And then came the big switch and a final promotion to Mumbai. She was posted as a branch manager in Borivali West branch in 2016. So 2016 में मम्मी की ट्रांसफ़र हुई थी मुंबई में. I still remember mom had called me one day. She was posted in Nagpur then और मम्मी ने कहा था मेरा फिर से प्रमोशन होने वाला है और हो सकता है मुझे मुंबई मिले. So I was like cool ठीक है because तब तक मैं actually मुंबई में अकेले रह ली थी जितना रहना था. I had lived my single independent life with roommates and had all the fun and did all the house parties I could in the world. So all of that was done and I was pretty cool about moving in with family. कुछ दिनों बाद मुझे मम्मी का फ़ोन आया कहते हुए कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ मुंबई. मैंने कहा ग्रेट इन 4-5 months राइट. शी इज़ लाइक नो इन 15 days. And I was like what? So I literally got 15 days to switch from my independent bachelor life to suddenly moving back with family. So मम्मी आई मेरे भाई के साथ हम तीनों रहे इसी घर में. यहीं पे we moved in since 5 years for us in this house.
एंड ऑफ कोर्स आफ्टर यू लिव्ड इंडिपेंडेंटली फॉर अ गुड आई थिंक 6 years, उसके बाद सडनली तुम जो फैमिली के साथ रहते हो तो ऑफ कोर्स वही होता है जिसका डर होता है। बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत झगड़े हुए, येलिंग, मैचेस, स्क्रीमिंग, वी यूज्ड टू फाइट सो मच, which we still do, but now there's a lot more understanding even in the fights. She's not the typical mother, she's not nosy, she's not going to annoy me with where are you going, when are you going to come back, and I can just do my own thing even while living with her, so it's been pretty cool like that. And very honestly, her moving to Mumbai has been a huge blessing for me, क्योंकि जो मैं YouTube कर पाई, जो YouTube में इंडिपेंडेंटली परस्यू कर पाई 2 साल तक, हैज़ बिन ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हर। सो आई थिंक दिस इज द यूनिवर्स's प्लान टू सेंड her here so I could do this, क्योंकि ऑनेस्टली अगर मम्मी नहीं होती तो मैं नहीं कर पाती यूट्यूब। यहाँ पे मुंबई के रेंट्स पे करने में तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। जो सैलरी आती है ना कुछ लोगों की, उतना पूरा उनका रेंट होता है। ऑफकोर्स जब मैंने यूट्यूब नया शुरू किया, शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट, शी वॉज क्वाइट अपसेट कि अभी मैं ये कर रही हूँ। बट आई थिंक एज टाइम पास, एज शी सॉ मी ग्रो, एज शी सॉ पीपल्स फीडबैक, शी काइंड ऑफ बिकेम ओके विद इट। एंड उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वीडियोज विद हर, उसके बाद तो कहानी चेंज हो गई। उसके बाद शी इज बिकम द स्टार ऑफ माई चैनल थैंक्स टू ऑल द लव दैट यू गाइज हैव कंसिस्टेंटली सेंट आवर वे, which I'm very grateful for, and which she also loves. She loves the attention that she gets now. Although I have to admit कि मुंबई में शिफ्ट होना और यहाँ पे रहना is not easy. You know, Mumbai is a very overwhelming, kind of intimidating at the start. And mom moved to Mumbai at the age of 55. Like, I think it's commendable क्योंकि as you grow old, you're set in your own ways. You like things a particular way. तुम्हारी काफ़ी do's and don'ts होते हैं लाइफ में by that age. एंड सडनली आकर मुंबई जैसे शहर में रहना, यहाँ का पोल्यूशन, पॉपुलेशन, कमोशन ऑन द स्ट्रीट्स एंड द हाउसेज विच आर सो स्मॉल कंपेयर टू नागपुर एंड पुणे जहाँ पर हम रह चुके थे। शी यूज्ड टू ड्राइव to and fro from Andheri to Borivali for 2 years. I think she did that. And my mom now gets very excited about competitions. She is Monica from Friends. उन्हें competition सुनते ऐसे अंदर कुछ तो उनके light हो जाता है, and she loves winning. So she would come home every few weeks with some certificate, with some gift, like an excited child who comes from school and says, "See मैंने क्या जीता." And every few weeks she would be winning something at her bank. जितना ही मुझे इस बात की बहुत चिढ़ भी होती थी कि ये मम्मी इतनी एक्साइटेड क्यों है अपने बैंक जाने के लिए, बहुत बार, क्योंकि sometimes her excitement was, enthusiasm was way too much for us to handle, but it was commendable nevertheless. एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा कमेंडेबल बात ये थी जो पिछले साल जो पैंडमिक में उन्होंने अपने बैंक का जब काम किया, शी वॉज हेडिंग द बरोल ब्रांच इन मुंबई while we were all in a global pandemic, and it was quite scary for me of course because पूरा कंट्री लॉकडाउन में है, सब लोग घर से काम कर रहे हैं, and she was driving to work every single day, like since March 2020 till now she did not take any offs. मुझे एक बहुत फ़नी किस्सा याद है, जब हमारी बिल्डिंग में नए केसेस निकले थे और हमारी बिल्डिंग सील हो गई थी, ये बहुत आई थिंक अप्रैल की बात होगी, एंड एवरीबडी वाज टोल्ड इन द सोसाइटी दैट दे कांट स्टेप आउट फॉर 15 days, एंड माय मॉम वाज लाइक ऐसे कुछ नहीं, मेरा तो एसेंशियल सर्विसेज है, मैं निकल जाऊंगी। And I told her, you cannot step out, it's risky for people and you can't go. She's like, no, but I have, I'm supposed to be accountable for my work at the bank and everything. So I told her, it's okay, they will understand. But she did not listen to us. मम्मी फिर भी रेडी हुई, अगले दिन बैग टांग के हमारे गेट तक गई, और गेट पे जो पुलिस का बंदोबस्त लगता था तब मुंबई में, तो पुलिस वालों ने कहा कहाँ जा रही है मैडम, आपकी बिल्डिंग सील्ड है। माय मॉम वाज लाइक, आई हैव दिस लेटर, आई एम एन एसेंशियल सर्विसेज पर्सन, लाइक गो बैक अप। After the police guys sent her back up, she came and sat at home. अगर वो लोग उन्हें नहीं रोकते तो वो फिर भी बैंक जाती। She loved going to her bank so much. So seeing my mom approach her retirement is a very weird feeling for me, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों पहले सोच रही थी कि I've literally witnessed her बैंकिंग जर्नी। 40 में से जो 30 साल है वो लिटरली मैंने विटनेस किए हुए हैं। आई हैव बीन सीइंग मॉम रश फॉर हर ऑफिस सिंस आई वाज अ किड, बिकॉज आई हैव दिस विविड मेमोरी ऑफ मॉम गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग, रशिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर, वो टिपिकल जो अर्ली मॉर्निंग रश होता है ऑफिस जाने का, वो सब करते हुए आई हैव सीन हर थ्रू इट ऑल।
एंड एक चीज़ जो कांस्टेंट रही है इतने सालों में, विच इज़ वेरी क्यूट एक्चुअली, वो ये है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इवन व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मॉम रेडी फॉर हर वर्क. सो जब तक मम्मी नहाने जाती थी, मुझे याद है कि मैं उनके कबर्ड में जाकर ढूंढती थी कि बहुत सारी शी शुड वेयर, व्हाट ब्लाउज शी शुड वेयर. देन मैं फटाक से जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिंदी, ईयर रिंग्स, यू नो, चूड़ी बूड़ी, ऑल ऑफ दैट ढूंढ के ऐसे जाकर प्रॉपरली अरेंज करके रखती थी. एंड आई हैव टू टेल हर नाउ वेयर ऑल ऑफ दिस. And of course, not much has changed from then until now. I still do that. But even now, like whenever mom's getting ready for work, she will always come and show me what she's wearing. And invariably it happens कि जो वो पहन रही होती है वो मुझे कभी पसंद नहीं आता. I most of the times reject it. And then she'll come and show it to me and get it approved from me before leaving for work. That is one thing that has stayed intact over the years, which I think I'm going to miss. So what is the one thing that 40 years of service in SBI has taught you? Bank job taught me tolerance. टॉलरन्स तुम्ही आपलं वाढवायला पाहिजे, कारण समोरचा केव्हा आणि कसा अटॅक करत तुमच्यावर ते आपण काही गेस नाही करू शकत. भले ती चुकी त्याची असो आपली असो कस्टमरची असो. How is the feeling last एक हफ्त्याचं काम? जे आतापर्यंत खूप बिझी शेड्यूल होतं, तर एक स्ट्रेस आणि टेन्शन होतं, पण त्यातही एक आनंद यायचा. म्हणजे ते पण काम करण्यात एक वेगळा आनंद यायचा किंवा इंटरेस्ट वाटायचा. आता तर मला थोडंसं रिलॅक्स वाटतंय की चला आता सर्व्हिस माझी आता एंड होते आहे, तर आता मी वेळ माझ्या पर्सनल लाईफसाठी पण देऊ शकेल, जो आतापर्यंत मी देऊ शकली नाही. माझा पर्सनल इंटरेस्ट, माझं पर्सनल लाईफ किंवा माझा घरासाठी वेळ किंवा घरातल्या लोकांसाठी वेळ मी आता चांगला देऊ शकेल. कधी वाटलं होतं का की पोस्टिंग नागपूरला होईल आणि रिटायरमेंट मुंबईच्या ब्रांचमध्ये होईल? नाही, कधीच विचार नव्हता केला. तर हे फिलिंग तर ग्रेट आहे. मी मुंबईमध्ये रिटायर होते आहे, मेट्रो सिटीमध्ये. एक चीज़ पे मेरी और मम्मी की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है. वैसे वी तो फाइट वेरी ऑफन एंड ऑलमोस्ट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट स्पेशली अबाउट दिस वन थिंग वी फॉट अ लॉट, एंड दैट्स बीन अबाउट टेकिंग ऑफ्स फ्रॉम हर वर्क. So I am somebody who, you know, for me, days with my family, like their important days, birthdays, anniversaries, all these things are very important to me. And मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें काम से थोड़ी कम important, नहीं, काम से थोड़ी ज़्यादा important है, काम इससे इतना important नहीं है. And my mom does not think like that at all. So we've always had a huge difference of opinion about it. She's like, no, work is equally important and sometimes more. So इस बारे में हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई है. Where, you know, there have been days and occasions where I'm like, I've planned something, I'm like, we must do this, and she's like, no, I won't take an off. एंड फुल महाभारत हुआ है उसके बाद. एंड नाउ मेरी हमेशा मम्मी से एक ही कंप्लेन रही है कि घर पे शी इज़ नॉट गिवन अस इनफ टाइम. और यू नो, बहुत बार कितने संडे शी इज़ गॉन टू वर्क, स्पेशली इन द लास्ट 2-3 years. आई हैड टू फाइट विद हर इवन टू स्टे एट होम ऑन संडे समटाइम्स. अब जब वो पूरे वक्त घर पे रहने वाली है मेरे साथ, आई डोंट नो हाउ दैट्स गोना बी लाइक, ऑल्दो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो या, बट नोइंग हर, मुझे नहीं लगता मम्मी बहुत दिन आराम करेगी. उनके फितरत में ही आराम नाम की चीज़ नहीं है. शी इज़ वेरी लाइक, शी ऑलवेज वांट्स टू डू समथिंग एंड कीप हरसेल्फ ऑक्यूपाइड. सो आई फील ये कुछ ही दिनों का रेस्ट रहेगा, एक ब्रेक रहेगा. आई फील लाइक शी विल गेट बैक टू समथिंग विद इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स. व्हाटएवर शी डज, आई एम श्योर शी इज़ गोना बी ग्रेट एट इट लाइक ऑलवेज. एंड या, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंटायर पीरियड. सो रिटायरमेंट बद्दल खुश आहे की सॅड आहे? नाही, सॅड तर नाही आहे, कारण की खूप वर्ष नोकरी केली, 40 वर्ष म्हणजे काही कमी नाही आहे. खूप जास्त म्हणजे आहे. खूप समाधान आणि खूप म्हणजे काय म्हणतात सॅटिस्फॅक्शन आहे मला. ऑफकोर्स कुठलंही आपण कुठलीही जागा सोडतो तर ते तर फिलिंग असते की आपण आपले अटॅचमेंट असतात जागेशी, ब्रांचशी, लोकांशी, स्टाफशी, तर ते तर मी मिस करणार आहे. बट आता प्लॅन काय की काय करशील रिटायर झाल्यावर? रिटायर झाल्यावर मी अजून तर काही ठरवलेलं नाही आहे, पण आधी काही दिवस तर मी रिलॅक्स होईल, त्याच्यानंतर बघू मग काय करायचं. तर आराम तर शक्यच नाही पूर्ण फुल टाइम करणं, काही ना काही करू. ओके, बाय. बाय.